Good morning, dear students. Welcome to e-learning Sacred Hearts in Business Studies. In the previous lecture, that was the 21st lecture, we have discussed about the different type of insurance, in which we have discussed about the life insurance, fire insurance, and marine insurance. Today, in 22nd lecture, we are going to discuss about the last topic of the chapter, that is communication services. Dear students, what is the communication? Communication refers to exchange of idea, view, messages between two or more persons. When we used to express, when we used to exchange our ideas, messages between two or more persons, it is known as communication. So this topic is all about communication services. So if we talk about the communication services, the types of communication services, then you can see there is a very broader classification between the communication services, between the postal services and the telecom services. Both the services we are going to discuss in the brief, that what are the postal services, its different types, and what are the telecom services and its different types. So dear students, let us start with the second topic, that is the postal services. The government at the national as well as international level provides the postal services. जो हमारी कंट्री में पोस्टल सर्विसेज हैं उसको जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है, एंड इट्स लोगो हैव बीन प्रेजेंटेड ओवर है. आप इमेज देख सकते हैं, इट इज़ द लोगो एंड इट इज़ द प्रेजेंटेशन इमेज जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ द पोस्टल सर्विसेज ऑफ इंडिया. Now, if we talk about the what are the main features of the postal services in our country, so there are some certain dominating features. Let us discuss them one by one. The very first, all the postal services are controlled by the government. All the type of postal services that are provided in our country are controlled, regulated by the government. Second, the postal department provides services at national as well as international level. और जो services provide होती हैं वो national, that means inside the country, and international as well as that means कि outside the country भी provide होती हैं. Next, along with postal services, nowadays वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑल्सो ऑफर्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट. अगर हम लोग इनिशियल टाइम की बात करें, स्टार्टिंग टाइम की बात करें, तो एट द टाइम इनिशियली देर वॉज ओनली द पोस्टल सर्विसेज, बट नाउ अलॉन्ग विद द पोस्टल सर्विसेज सम ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज और द वेरियस लेटेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैव बीन स्टार्टेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट. Next, post offices have also started speed post services to compete with the courier services. Courier services are the private services, and to compete with it, because it was just coming in the trend, so compete with it, postal department have launched its a special service, that is the speed post service. Next, post offices also provide an important service of telegraphic communication. It also used to provide the service of telegraphic communication. And the last, postal services are highly reliable. They are highly reliable. What is the meaning of reliable? That means on which we can be dependent. And why these are the highly reliable? Because they are directly regulated and controlled by the government of India. Now dear students, there are some drawbacks as well of the postal services, and there are two major drawbacks. The first one, slow in speed. Whatever the goods are there, whatever the transmission is there, its speed always remain the slow. Second, bureaucratic in nature. And what is a bureaucratic in nature? It means it includes a lot of गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अ लॉट ऑफ स्टेप्स आर देयर, ड्यू टू विच जो इसका जो वर्किंग होता है बेटा वो कैसा होता है, ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर. दैट मीन्स देयर इज़ ऑलवेज टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिशियंस, of the government officials, which affect the autonomous work of the postal department. So these are the two drawbacks of the postal department. Now, द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट. अब जो पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है हम उसके बारे में बात करते हैं. सो देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ सर्विसेज. द वेरी फर्स्ट सर्विस इज द फाइनेंशियल सर्विसेज. सो वेरियस सेविंग स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस. अब गवर्नमेंट जो है उसने अंडर द पोस्टल सर्विसेज अपनी जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ उन्हें भी स्टार्ट किया है, इन विच द वेरियस सेविंग स्कीम्स एंड वेरियस डिफरेंट ऑफर्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द पीपल हु सो एवर वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, सच एज द प्रोविडेंट फंड, public provident fund, kisan vikas patra, national saving certificate. All these are the beneficial investment plans as well, which provides the exemption from the tax as well. If we talk about the NSE, that is the national saving certificate, it provides an exemption from the tax as well. Whatever amount you are investing in the NSE, it is exempted from the tax.
इमेज भी आप लोग देख रहे होंगे बेटा, एक छोटी सी इमेज यहाँ पे मैंने अफेक्स करी है रिगार्डिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इन द शॉर्ट फॉर्म इट इज़ नोन एज NSC, वो इस तरीके से क्या होता है, लुकआउट होता है। सेकेंड वी आर गोइंग फॉर द मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस अलॉन्ग विद द नॉर्मल ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को, या फिर फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो थिंग्स हैं या जो मैसेजेस हैं उनसे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। अब जो मेल सर्विसेज हैं उसमें भी डिफरेंट हेड्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। द वेरी फर्स्ट इज़ द अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट एंड इन द शॉर्ट फॉर्म इट इज़ नोन एज UPC. The service is now rarely used whereas the service was frequently used before the courier services. अब ये सर्विसेज क्या होती हैं, बहुत रेयरली यूज़ होती हैं, बट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कुरियर सर्विसेज दिस सर्विसेज वॉज फ्रीक्वेंटली यूज। ये सर्विस बहुत फ्रीक्वेंटली क्या होती थी बेटा, यूज़ होती थी। आगे देखिए, इन UPC द सेंडर विल डिलीवर द पार्सल और लेटर विद द ऑर्डिनरी पोस्ट। जो आपका पार्सल है, जो आपका लेटर है, वो आप ऑर्डिनरी पोस्ट से क्या करेंगे, सेंड करेंगे। एक स्पेसिफाइड काउंटर पे आप जाएंगे, एक सर्टेन अमाउंट आप पे करेंगे एंड यू विल सेंड योर गुड। दिस इज़ द अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं UPC। अब इसका जो यूज़ है वो बहुत कम होता है। सेकेंड वी आर कमिंग रजिस्टर्ड पोस्ट। व्हाट इज़ दिस? इन द रजिस्टर पोस्ट द सेंडर अफेक्सेस मोर पोस्टल स्टैम्प्स। पहले के कंपैरिजन में, किसके, UPC के कंपैरिजन में यहाँ पे और स्टैम्प्स लगते हैं, है ना, एंड इन द एनवलप एंड डिलीवर्स एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड ऑब्टेन्स रिसिप्ट। एक आपको साथ में क्या मिलती है, रिसिप्ट मिलती है। देन द पोस्टल अथॉरिटीज़ विल डिलीवर दैट पार्सल टू द एड्रेस ओनली। अब जो आपने एड्रेस मेंशन किया है उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका जो रजिस्टर्ड पोस्ट है वो क्या होगी, डिलीवर होगी। इफ़ दैट एड्रेस विल नॉट फाउंड आउट, अगर वो एड्रेस नहीं मिलता है, वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं मिलता है, तो वो गुड वहाँ पे डिलीवर नहीं होगा और वो क्या आ जाएगा बेटा, वापस आ जाएगा। ठीक है, सो वेयर एज लेटर्स सेंट अंडर द UPC मे रीच एड्रेस और मे नॉट। अगर हम लोग बात करें UPC की, तो वहाँ पे कोई गारंटी नहीं, आपने भेज दिया तो मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा। कोई पर्टिकुलर पर्सन उस एड्रेस पे उस कमोडिटी को ड्रॉप करके जा सकता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द रजिस्टर्ड पोस्ट, देन इन द रजिस्टर्ड पोस्ट इट इज़ अ गारंटी दैट वट एवर द स्टफ यू आर सेंडिंग इट विल बी डिलीवर्ड टू द सर्टेन एड्रेस एंड टू द सर्टेन पर्सन ओनली। अगर वो सर्टेन एड्रेस और पर्सन नहीं मिलता है, इन दैट कंडीशन वो आपका जो गुड है, जो लेटर है, जो डॉक्यूमेंट है, वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे डिलीवर नहीं होगा। एंड जनरली द यूनिवर्सिटीज़ यूज टू सेंड डिग्रीज, है ना, थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। उसमें आपका नेम मेंशन होता है, आपका एड्रेस मेंशन होता है। जब ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं तभी आपको वो डिग्री प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज इट इज़ अगेन सेंड बैक टू द यूनिवर्सिटी। वहाँ से आपको मैनुअली फिर कलेक्ट करनी पड़ती है। Now we are coming to the third one, that is a parcel post. It is a service of postal department for sending parcels through the post across the country एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। जो पार्सल पोस्ट सर्विस है उसमें आप कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी क्या कर सकते हो, गुड्स को सेंड कर सकते हो, सेंड आउट कर सकते हो। दिस इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ सेंडिंग द पार्सल। ये गुड्स को सेंड करने का, हैवी जो लगेज होते हैं उनको सेंड करने का सबसे इकोनॉमिकल, दैट मीन्स कि चीपेस्ट वे होता है। एक इमेज मैंने आपको दिखा रहा है कि हाउ दे यूज टू पैक द गुड्स व्हेन वी यूज टू डू द पार्सल पोस्ट। जब हम पार्सल पोस्ट करते हैं तो ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी आर coming, that is a speed post. What is speed post beta? It is a service to send the mail एज फास्ट एज पॉसिबल। स्पीड पोस्ट क्या है, नाम से पता लग रहा है बेटा, स्पीड पोस्ट एक ऐसी पोस्ट जिसमें कोशिश की जाती है। कौन कोशिश करता है? द पोस्टल डिपार्टमेंट यूज टू मेक द एफर्ट दैट एज सुन एज पॉसिबल द मेल मस्ट बी डिलीवर टू द सर्टेन पर्टिकुलर पर्सन। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ मेल। एक टाइम बाउंड डिलीवरी होती है, दैट अ मैक्सिमम टाइम पीरियड इज देयर, दैट विद इन दीज वर्किंग डेज इट विल बी डिलीवर टू द सर्टेन पर्सन। ठीक है, सो दैट इज वाई इट गिव्स feeling of satisfaction that the good or the letter will be or document will be sent to the particular person and will be received in the very fast manner. The charges of speed post are higher than the ordinary mail as it moves in a very fast manner and that is why its charges are comparatively high. ये जब आप speed post करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का stamp, जो मैंने एक image पेस्ट करी बेटा, that is to be seen, EMS उसमें लिखा हुआ होता है और it is like that. Now we are coming to the next one, that is the courier services and in the courier services it is provided by the private post offices. ये क्या होता है? प्राइवेट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करते हैं और इसमें क्या होता है, इफ़ यू टॉक अबाउट द courier services so it is more faster and reliable.
in comparison to the speed post as well, it is more faster, and the service is comparatively cheaper than the services provided by the post office. And whatever the services are provided by the post office, उसके कंपैरिजन में क्या होती है बेटा, इकोनॉमिकल होती है, चीपर होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपका ऑप्शन आएगा 6 अदर सर्विसेज इन विच यू विल सी द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ई बिल फैसिलिटी एक्सेट्रा. Now we are coming to the second part of the communication services, that is the telecom services. And if we talk about the telecom services, then telecom services plays a very important role in the growth and expansion of the business. Until and unless we are not having the proper telecom services, we cannot have a dream, we cannot think about to have a business on a global level, because for that we must be needed with some of the communication services to transmit information, to take the orders and to place the orders and so on. So further, government of India has developed telecom policy framework 1999 and broadband policy 2004 to realize the dream of India's vision of becoming IT superpower by the 2025. Our India, that means our country, our government is just having a vision कि हम लोग IT superpower बनेंगे by 2025, and for that the government have launched two of the policies. For the first one is the telecom policy framework 1999 and the second one is the broadband policy 2004. So dear students, types of telecom services देखते हैं बेटा इसमें. The first one is the cellular mobile services. What is this बेटा? It includes all mobile telecom services, जो भी मोबाइल सर्विसेज होती हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं वॉइस मैसेजेस की, नॉन वॉइस मैसेजेस की, डेटा सर्विस एंड PCO एक्सेट्रा, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस. दे कैन प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विद एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज. ये क्या करते हैं, आपको किसी अदर टेलीकॉम सर्विस के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. यू जस्ट सिंपली डायल अप द number and you just call to the particular person or send the message or send the WhatsApp, and these are the cellular mobile services. The second one is the radio paging services. If we talk about the radio paging services, then it is an affordable means of communication. Affordable means that means कि comparatively इसकी price कम होती है. It transmits information to the person even when they are mobile. Even when they are mobile, that means when they are moving, when they are not stagnant at a particular place, in that condition also you can send the message to the particular person whoever is having the radio paging services. It is a way of information broadcasting solution. रेडियो पेजिंग सर्विसेज आर अवेलेबल इंक्लूडिंग टोन ओनली. इसमें ऐसा होता है कि सिर्फ टोन आ सकती है, दैट मीन्स वॉइस मैसेज आ गया. न्यूमेरिक ओनली ऑन द नंबर्स आर कमिंग, और द अल्फा न्यूमेरिक, दैट मीन्स कि नंबर्स एज वेल एज द वर्ड्स आर ऑल्सो कमिंग. हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ द रेडियो पेजिंग, है ना. ये जो आपको एक इमेज दिख रहा है, दैट इज़ द इमेज ऑफ रेडियो पेजिंग सर्विस. ठीक है, देखेंगे आप इसमें कि एक मैसेज लिखा हुआ है, डेट्स भी आ रहे हैं, टाइम उसमें आ रहे हैं. ठीक, सो इट इज़ अ रेडियो पेजिंग सर्विसेज. लेकिन अब इसका जो यूज़ है वो कंपैरेटिवली नहीं होता, ये बहुत पहले इसका यूज़ होता था. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द फिक्स लाइन सर्विसेज, जिसको हम लोग लैंडलाइन भी बोलते हैं, वो हमारे फिक्स लाइन सर्विसेज में आते हैं. दीज आर द प्राइमरली कनेक्टेड थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल. क्या होती है, एक वायर से कनेक्टेड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फायर ऑप्टिक केबल, लेड अक्रॉस द कंट्री. पूरी कंट्री में इसका जो एक ट्रैप, एक जो जाल होता है, सॉर्ट ऑफ बिछा होता है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद दैट, एंड इट प्रोवाइड्स अ गुड सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी विद द अदर telecom providers as well. Now the fourth one, that is the cable services. These are the linkage and switch services within the licensed area of operation to provide entertainment services. If we talk about the cable services, तो अब हम लोग cable services नहीं सुनते हैं बेटा, बट इनिशियली या फिर पहले की अगर हम लोग बात करें, बिफोर 10 to 15 ईयर्स पहले की बात करें, तो केबल सर्विसेज हम लोग बहुत कॉमन वर्ड सुनते थे. बेसिकली आर पेरेंट्स यूज टू लिसन दिस वर्ड केबल सर्विसेज, दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैव टेकन द केबल सर्विसेज. सो व्हाट used to happen over there, a large amount of big antennas were there, और वो जो पर्टिकुलर पर्सन होता था वो केबल ऑपरेटर होता था, और वो पर्टिकुलर पर्सन उसको एक मंथली अमाउंट चार्ज करके उसको प्रोवाइड करके हम उसे एक वायर के थ्रू अपने टीवी में कनेक्ट करके जो इंटरटेनमेंट के जो डिफरेंट चैनल्स थे उसे क्या करते थे, देख पाते थे. ठीक है, इट इंक्लूड्स टू वे कम्युनिकेशन, i.e. वॉइस डेटा एंड द इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ये जो एक आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है किसकी, वो बड़े बड़े एंटीनास की, जिसके थ्रू जो केबल सर्विसेज होती थी वो प्रोवाइड होती थी. ठीक है बेटा. नाउ वी आर कमिंग टू द फिफ्थ वन, दैट इज़ द
वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, VSAT सर्विसेज, ठीक है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द VSAT सर्विसेज, देन इट ऑफर्स द business and government agencies a highly flexible and reliable communication solution in the urban as well as in the rural area. अगर हम लोग बात करें VSAT की, तो it is a सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस. ये क्या है बेटा? आपकी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें कि आपको बहुत रिलायबल और फ्लेक्सिबल जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड होती हैं इन द अर्बन एज वेल एज इन द रूरल एरियाज. ठीक है बेटा. फर्दर अगर हम लोग बात करें, VSAT ऑफर्स द रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड सर्विसेज. यहाँ पे जो आपकी सर्विसेज हैं वो इंटरप्टेड होती हैं. वाई इट इज़ अनइंटरप्टेड? बिकॉज डायरेक्टली वी आर गेटिंग द स्टफ फ्रॉम द वेयर, फ्रॉम द सैटेलाइट. आप इस इमेज में देखोगे बेटा, एक सैटेलाइट है बीच में, और सैटेलाइट से आप देख रहोगे एक एंटीने में आ रहा है जिसको VSAT सिस्टम लिखा हुआ है. ठीक है. सो इट इज़ अ VSAT सिस्टम, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये जो सॉर्ट ऑफ सिस्टम है वो डायरेक्टली क्या करता है, सैटेलाइट से आपके जो आउट ऑफ द अर्थ जो आपकी सैटेलाइट है वहाँ से क्या करता है, नेटवर्क कलेक्ट करता है, फिर आपको प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपके जो इसमें इंटरप्शन के चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, बहुत मिनिमम होते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट वी आर कमिंग डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, DTH. जो हमारे घर में जितने भी डिश टीवीज कनेक्शन है, ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द DTH. देखिए बेटा, इट इज़ अ डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेलुलर कंपनीज. जनरली कौन प्रोवाइड करता है? सेलुलर कंपनीज प्रोवाइड करती हैं. टू रिसीव सर्विसेज वन नीड्स अ स्मॉल डिश एंटीना. जो हमारी छत में लगा होता है गोल सा, है ना, राउंड सॉर्ट ऑफ, दैट इज़ द डिश एंटीना. एंड अ सेटअप बॉक्स, जो कि हमारे टीवी के आसपास ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, वो क्या होता है, सेटअप बॉक्स होता है. और उसके थ्रू हमें सर्टेन चैनल्स क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं. अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करें कि भाई दोनों हमको सुनने में सेम लग रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द VSAT सर्विसेज एंड DTH सर्विसेज. सो VSAT सर्विसेज इज़ यूज्ड फॉर द commercial and non-commercial purpose, for the business, for the communication and for the entertainment as well. But if we talk about the DTH, then generally DTH is used for the purpose of entertainment only. Generally सिर्फ किसके लिए यूज़ होता है बेटा, entertainment के लिए. So this is all about today बेटा. Today we have seen about the meaning of communication services. Thereafter we have seen about the postal services, इट्स टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज, जिसमें हमने बात करी थी फिनेंशियल फैसिलिटीज़ की, मेल सर्विसेज के डिफरेंट टाइप्स देखे. देयर आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेलीकॉम सर्विसेज एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीकॉम services, in which we have discussed about the cellular mobile services, radio paging services, fixed line services, cable services, VSAT services and DTH services. This is all about today's lecture and even about the fourth chapter, that is business services. This chapter is completed. Thank you very much. God bless you all.